पृथ्वी मानव जीवन के अस्तित्व की एकमात्र जानी गई जगह है। इस ग्रह पर 89% जल है, जो मानवीय जीवन की शैली और संस्कृति का प्रणेता है। अनेक मान्यताओं, विश्वासों एवं धार्मिक आस्थाओं के कारण यह देश भारत अनेकता में एकता दर्शाता पवित्र मंदिर बन गया है। लोगों के आपसी सौहार्द एवं भावनात्मक गठजोड़ के कारण आजादी के बाद लगभग 6 दशकों में भारत उद्योग, कृषि व अन्य अनेक क्षेत्रों में जबरदस्त प्रगति कर एक सशक्त अर्थव्यवस्था के रूप में उभरता जा रहा है। परंतु भारत के जनजीवन के आंकड़े एक अलग ही चित्र खड़ा करते हैं। विगत 20 वर्षों से हरित क्रांति तथा शहरी आबादी की वृद्धि के बावजूद भारत आज भी ग्रामों में बसता है, क्योंकि 70% आबादी आज भी गांव में ही रह रही है। अतः गरीबी एवं निरक्षरता आज भी हमारी बाधित प्रगति के लिए महज एक बहाना बनकर रह गए हैं। इसीलिए हम आज भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रमाण यह है कि आज प्रतिवर्ष 9 लाख लोग जल प्रदूषण या वायु के प्रदूषण से मर रहे हैं। हम कहते हैं जल ही जीवन है, मगर आज विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्था वाले इस देश में हम यह कैसे कह सकते हैं, क्योंकि वही जल तो गरीबों की मौत का आसान पर्याय बनता जा रहा है। हम पानी का कई जगह उपयोग करते हैं, चाहे रसोई हो, धुलाई हो, उद्योग हो, खेतीबाड़ी हो, ऊर्जा उत्पादन हो या मुख्यतः पीने का पानी अर्थात पेयजल हो। इसका तात्पर्य यह है कि जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में हो, यह आवश्यक है। शहरों में तो पेयजल आसानी से उपलब्ध हो जाता है, मगर गांव का परिदृश्य एकदम विपरीत है। पूरे गांव के लिए मुश्किल से एकाध कुआं या नलकूप होता है। वहीं का पानी निकालो और पियो, चाहे जैसा भी हो। दुर्भाग्य यह है कि लोग जो पानी पीते हैं उनमें अनेक रासायनिक व जैविक घातक तत्व होते हैं। In India today, almost 40 million people are affected by waterborne diseases every year. Primarily, there are two types of contaminants in water. One is biological contaminant and the other is chemical contaminant. In recent years, the problem of chemical contaminants has surfaced and there are almost 2 lakh habitations in India which are affected by chemical contaminants. There are 5 types of chemical contaminants which are prevalent in India. Those are the top 5 are fluoride, arsenic, iron, nitrates and salinity. Every contaminant will have a different effect. And drinking water polluted by chemical contaminants is as if drinking water polluted with poison. So in our cities, in urban areas, we have big water treatment plants where water is treated. When the water reaches our homes, we still put in-house, which we call point of use water purifiers like AquaGuard or Kentaro, and then we drink the water. But unfortunately, because of the affordability factors, in villages, these villagers are drinking the water directly as it is. If there is a source well, or if there is a bore well which is contaminated by high TDS or high fluoride or high arsenic, so the villagers don't have any precautions or any equipments which they can use at their home. So these people directly draw water from these sources and directly drink. फ्लोराइड 1758 गांव, लोह युक्त 1675 गांव, TDS 279 गांव से प्रभावित है। भारत देश में 66 दशलक्ष लोगों को फ्लोराइड युक्त पानी से तकलीफ हो रही है। यह प्रमाण भारत देश के कुल लोक संख्या के 5% है। महाराष्ट्र उसमें से एक राज्य है और उसमें चंद्रपुर, यवतमाल, नांदेड़, भंडारा, सतारा और परभणी यह जिले मुख्य फ्लोरोसिस से प्रभावित हैं। फ्लोराइड के दुष्परिणामों से पीने के पानी के मुख्य कारण जमीन के अंदर के पानी को जरूरत से ज्यादा निकालना है। उस कारण देश में फ्लोराइड के कारण होने वाली बीमारियों को बहुत बड़ा धोखा निर्माण हो रहा है। Fluoride has a selective effect on the hard tissues of our body, that is teeth and bones. Optimum level of fluoride in the body is 1 to 1.5 parts per million. If high levels of fluoride are present, it causes dental fluorosis. Up to 4 parts per million, dental fluorosis is characterized by white, brown, yellow spots or patches on the teeth with pitting, mottling, disfigurement.
Dental fluorosis is irreversible, and as on date, there is no cure for dental fluorosis. The treatment that is there is only in the cosmetic treatment form. Therefore, prevention of dental fluorosis is absolutely essential, which can be obtained by regulating the levels of fluoride in drinking water. High levels above 4 parts per million will cause skeletal fluorosis, which is characterized by joint pain, joint stiffness, and outward bending of hands and legs, which is a crippling disease. In order to prevent skeletal and dental fluorosis, this optimum level of fluoride has to be maintained in the major source of fluoride to the body, that is drinking water. इन गांवों में सबसे अधिक फैलने वाला विकार है स्केलेटल फ्लोरोसिस। इस बीमारी में व्यक्ति लगभग अपाहिज सा हो जाता है तथा धीरे धीरे हड्डियों की सख्ती अर्थात कठोरता बढ़ती जाती है। यह विकार या बीमारियां कोई अचंभा नहीं है, यह तो स्वाभाविक है, क्योंकि इन गांवों में पानी का स्रोत मात्र वही 2 या 3 नलकूप होते हैं। ये लोग इन बीमारियों को वात या डेंगू जैसे विकारों का रूप मान लेते हैं, पर इसका एहसास नहीं करते कि ये उस पानी की देन है जो ये रोज पीते हैं। इसी कारण एक समय जल ही जीवन है की उक्ति आज गरीबों के लिए मौत का आसान सामान बन गया है। हमारा शहरी जीवन उन परिस्थितियों से काफी बेहतर है, क्योंकि हमारे पास स्वस्थ रहने के लिए कई संसाधन एवं सुख सुविधाएं हैं। हमारा जीवन यापन पूरी तरह हमारे हाथों में है। आपने अभी पानी कहाँ से लिया? But just got it from Tobis. नॉर्मली शॉप से खरीद लेते हैं हम लोग। आपके घर में पानी कहाँ से आता है? घर में हमारे यहाँ एमएनसी का भी पानी आता है, प्लस वी गेट मिनरल वाटर बॉटल्स। आपको पाणी कहाँ से मिळता आहे? नळाच्या विहिरीत आम्हाला दुरून पाणी द्यावं लागते, 2-3 वेळ यावं लागते आणि विहिरीतलं काढावं लागते। खूप त्रास होते आम्हाला। ये बाधित बच्चे खुलकर मुस्कुरा भी नहीं सकते, क्योंकि दांत पूरी तरह खराब हो गए हैं। ये लोग न ज्यादा देर तक सीधे खड़े रह सकते हैं, न ही आराम कर सकते हैं। हड्डियों की कमजोरी के कारण उन्हें बैठने में भी परेशानी होती है और परिणामतः वे लुढ़क जाते हैं। और तो और गरीबी इलाज करवाने से वंचित ही रखती है। आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में प्रति 1 लाख व्यक्तियों के लिए मात्र 60 डॉक्टर्स उपलब्ध हैं। डॉक्टर नहीं ना सही, पर क्या हमारा एक प्रभावी कदम हमारे देश को स्वस्थ व सुखी नहीं बना सकता? अवश्य बना सकता है।